اس وقت ہم قربتھاؤں میں کووڈ-19 ہسپتال پہ یہاں پہ پہنچے ہیں. یہاں کووڈ-19 ہسپتال کے جو عملے ہیں، میڈیکل عملے، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ناانصافیوں کو لے کر. یہاں کے پیرا میڈیکل اور نرسنگ سٹاف جتنے بھی ہیں وہ باہر آ کے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آج ناانصافیاں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے سے یہاں پہ جد و جہد کر رہے ہیں، کووڈ-19 کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ایسے میں میڈیکل جو محکمہ صحت ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے UT لداخ، ان کے ساتھ ناانصافیاں برت رہے ہیں. ان کا صاحب کہنا ہے کہ ان کو جب یہاں میڈیکل ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بہت سارے کیس نکل آئے تو اس میں ایک ڈاکٹر بھی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کو ہوٹل فیسلٹی دیا ہے، باقی سٹاف باقی نرس وغیرہ ہے ان کو یہاں آئسولیشن وارڈ میں لایا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کو بھی آئسولیشن وارڈ میں لانا چاہیے. تو یہ ان کا صاف کہنا ہے. ابھی اس چند آدھا گھنٹہ قبل یہاں ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایڈیشنل DC بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ابھی یہاں CMO چیف میڈیکل آفیسر یہاں پہ آئے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے. ان کا الزام بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے 70 کے قریب والنٹیئرز بھی ہے، جس میں زیادہ تر نرس ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں پہ فری کام کر رہا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں، ہم چیف میڈیکل آفیسر سے ہی ہم پوچھیں گے ابھی. سچویشن پہ آپ کے ساتھ میڈیکل عملے جو یہاں پہ اسٹابلش کر وہ تو آپ کے محکمہ صحت کے بارے میں کہ مطلب چیف میڈیکل آفیسر کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کبھی دیکھا نہیں. آپ نہیں تو ہم تو وہی ایک طرف چلائیں گے. ٹھیک ہے نا سر، مجبور ہے نا آپ کو بھی اپنا مطلب کلیئر کرنا چاہیے. وہی نا بات کرنا چاہیے. جب تک بات نہیں کرے گا اپنا پکش رکھ سکتے ہیں نا سر. آپ کا پکش رکھ سکتے ہیں. جس طرح سے یہ لوگ ابھی یہاں پہ نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کے خلاف لگا رہے ہیں. بالکل آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف کیوں نعرہ لگا رہے ہیں. ہم سب میڈیا سے نہیں، اگر کہیں پہ مطلب کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے ہم ون سائڈ اسٹوری نہیں چلا سکتے ہیں. ہم دونوں سائڈ کا ان کا بھی سنیں گے، کیونکہ ہم عدالت تو ہم جج نہیں ہیں. ہم دونوں کا سنیں گے، پبلک فیصلہ کرے گا. یہ کیا ہوا تھا تو ان کو یہاں پہ لانا تھا. ہمارے یہاں سے ڈرائیور گیا تھا، ان بیچارے نے مطلب 3-4 گھنٹے تک PP کٹ بینک کے وہاں پہ ان کو مناتے رہے، وہ آئے ہی نہیں. اس PP کٹ میں کیسا محسوس ہوتا ہے، ہمیں کتنا سفوکیشن ہوتا ہے وہ ہمیں ہی پتا ہے. اس بیچارے کو وہاں پہ کھڑا رکھا، پھر اس کے بعد آئے ہی نہیں. اگر رکھنا چاہتے تھے تو ہمارا نیوڈل آفیسر بھی اپنے بیٹے کو رکھ سکتے تھے الگ سے ہوٹل میں. انہوں نے کیوں لایا؟ ان کو پتا ہے نا کہ یہاں پہ پیشنٹ کس مطلب مینٹل ٹراما سے گزرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہاں پہ لایا، الگ نہیں کیا اپنے بیٹے کو. ڈیمانڈ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارا ڈیمانڈ ہے جو بھی مطلب جہاں یہاں مطلب آئسولیشن وارڈ بنایا ہے سارے پیشنٹس کے لیے، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہو، چاہے وہ ڈاکٹرس ہو، چاہے وہ DC ہی کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ ہمارے مطلب پیشنٹس کے جو پیرامیڈیکل سٹافس کے ان کے ڈیمانڈ سے مطلب وہ پورے ہوتے ہی نہیں ہیں. 2-3 دن سے بول رہے ہیں کہ ان کو الگ الگ الیکٹرک کیٹل دے دو، وہ بالکل ملا ہی نہیں ان کو. آج تو صبح سے ان لوگوں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. مطلب ان کو کیوں نہیں لایا، ہمیں مطلب
तो सभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के अंदर नहीं रख रहे हैं। हाँ, नहीं रख कहने रहे का मतलब है कि इसमें पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच में कहीं न कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि ज्यादातर हम पैरामेडिकल्स ही होते हैं पेशेंट्स के साथ हर वक्त। तो क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हमें इंसाफ चाहिए। और हमारे जो सीमो साहब है वो कभी आज तक अंदर घुसे ही नहीं है। आप जाके देखो ना वहाँ पे सिचुएशन क्या है, तभी आपको पता चलेगा। जब हम खुद वहाँ पहुँचते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम किस ट्रॉमा से गुजरते हैं। लोगों का नजरिया, मतलब लोगों की बातें सुनना पड़ता है कि क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है। तो क्यों ये मतलब जाके अंदर नहीं देखते? एक बार खुद भी पीपी किट पहन के अगर अंदर जाके देखे ना कि उस पीपी किट में हमें कैसा फील होता है। 3-4 घंटे अगर हमें उसमें रहना पड़ता है तो क्या हमारा ये हश्र होता है, वो भी पता चलेगा उनको। एक बार खुद जाके देखे तो। करगिल होश में हो, डीसी करगिल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डीसी करगिल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नहीं इंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं इंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पैरामेडिकल टीम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पैरामेडिकल टीम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice। जो डिस्क्रिमिनेशन आज हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हुआ है, हम इनके सॉलिडेरिटी में बिल्कुल साथ ही साथ खड़े हैं। ये लोग जितना खिदमत यहाँ पे इन पॉजिटिव पेशेंट्स के कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। हम पूछते हैं डीसी करगिल से, ये कहाँ का इंसाफ है कि भाई अगर डॉक्टर पॉजिटिव आया तो उनको बड़े बड़े अच्छा खासा होटलों में रखा गया है, और जो बेचारे नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप कैसे रख सकते हैं? क्या इनके काम, क्या इनके खिदमत उन डॉक्टर से कम है? क्या इनका वैल्यू, इनके जिंदगी का वैल्यू इन डॉक्टर से कम है? और साथ ही साथ हम डीसी या करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की भी अपील करते हैं कि आज हमें यहाँ पे आके 12-13 दिन हो चुके हैं और हमारे टेस्ट आके 10 से 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें अपने टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं दिखाए गए, जबकि हमने इनको कई बार पूछा है। क्या आप लोग बताओ, ये हमारा राइट नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक पेशेंट अगर अपना रिपोर्ट मांगते हैं, रिपोर्ट का स्टेटस मांगते हैं, तो क्या इनके ऊपर लाजिम नहीं है कि उस पेशेंट को वो रिपोर्ट दिखाया जाए? उसके बाद हम ये भी कहते हैं, ये कहाँ के SOP में लिखा गया है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसके घर को पूरा चारों तरफ से लाल झंडा फहराएंगे? ये कौन सा SOP में लिखा गया है? हम जवाब चाहते हैं, अथॉरिटीज के खिलाफ एक्शन चाहते हैं जिन्होंने ये लाल झंडे फहराए हैं घरों के ऊपर। अब ये बताओ, क्या उन घर में एटम बम रखा है? ये बताओ, क्या उन घरों में दहशतगर्द छुपे हुए हैं? ये बताओ, जब आप सैनिटाइजेशन के नाम पे उन घरों का लाइव वीडियो आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, किसने आपको परमिशन दिया? किसने इजाजत दिया आपको? क्या ये आपके वायलेशन ऑफ डिग्निटी नहीं है? वायलेशन ऑफ प्राइवेसी नहीं है? और ये फंडामेंटल राइट है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। इसके तहत हम आप लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो जिन कांड किया है इन लोगों ने, इनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। उसके बाद जो हमारे प्राइवेट डिटेल्स थे, जो हमारे प्राइवेसी थे, नाम थे हमारे जितने भी डिटेल्स थे, पर्सनल डिटेल्स, पहले ही दिन यहाँ से इन लोगों ने बाहर वायरल करा दिया। किसके इजाजत से आपने हमारे नाम को, हमारे डिटेल्स को, हमारे फैमिली के डिटेल्स को बाहर वायरल कराया? किसके इजाजत से किया आपने? क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? कहाँ है वो इन्वेस्टिगेशन? कहाँ पहुंचे वो रिपोर्ट का स्टेटस? हम चाहते हैं डीसी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी करगिल यहाँ आए, हमसे बात करें। हम लोगों ने बहुत बार डीसी करगिल को फोन किया यहाँ से, और बहुत सारे वायदे किए उन्होंने,
लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं आए हो, तो क्यों नहीं आ रहे हो डीसी करगिल यहाँ पे बात करने? हम चाहते हैं कि इन सारे जो मसले हैं हमारे, इन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करें, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करें। इतिहास के अलावा आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? यहाँ की प्रॉब्लम है बताओ ना। लोगों को प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। जमाने को सबक सिखला गए करबूबाला वाले, जमाने को सबक सिखला गए करबूबाला वाले। सितमगर की हिमायत कर नहीं सकते खुदा वाले, सितमगर की हिमायत कर नहीं सकते खुदा वाले। किसी मजलूम बेकस की तरफदारी न छोड़ेंगे, तरफदारी न छोड़ेंगे, हम इनके लिए जान दे देंगे। But unfortunately, Deputy Commissioner Kargil हमें promise करते हैं we will come to the venue and we'll talk to you. Unfortunately, वो सिर्फ एक वादे तक सीमित रह गया, यहाँ पे आए नहीं. And we will still, हम वेटिंग कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर करगिल की. एक दिन एडीसी साहब आते हैं, हम यहाँ से आवाज मारा, सर वी हैव सम इश्यूज. He ignored us completely and he went out. हमारी grievances सुनना चाहिए. He is a public servant and he is meant for the people only. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया. हमारे साथ भी बहुत सारे इश्यूज, हमारे नाइंसाफियां हैं. आज जो हमारे पैरामेडिकल और हमारे एनओज या दूसरे लोअर स्टाफ्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज हम उनके साथ सॉलिडारिटी पेश करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर आल्सो ए विक्टिम एंड दे आर आल्सो फोर्स्ड टू बी ए विक्टिम. आज जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मुझे हमें पता है सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करते हैं हमारे साथ. दे आर दीज पीपल who spend the maximum number of times with us. They are the most vulnerable. सबसे vulnerable section ये है. और आज इनके साथ जो नाइंसाफी हो रहे हैं, आज उनके साथ भी हम खड़े हैं. और हमारे साथ जो नाइंसाफी है, हमारे एक भाई ने आप लोगों के सामने रखा. तो ये सारे इश्यूज है. हम डीसी करगिल से भी चाहते हैं कि सबके साथ जस्टिस करे, सबके साथ इक्वालिटी करे. और जो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो हमारे सारे पेशेंट का खिदमत कर रहे हैं, इनको इग्नोर ना करें और उनको अपना राइट दे. जो न्यूज 18 उर्दू चैनल है, उसमें जो हमारे खिलाफ गलत बयान उन्होंने दिया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ टीआरपी के लिए, बिल्कुल फेक न्यूज है, वो बिल्कुल झूठ है. उनको पब्लिक में आके हमारे से अपोलोजाइज करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा. अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम चुप नहीं रहेंगे, डिफेमेशन केस उनके ऊपर लग जाएगा. श्रीनगर से 14 यहाँ पे 14 पहुँचे, इंस्टीट्यूशनल में हमें रखा गया है. हम श्रीनगर से आए थे, हमें जानबूझकर इन्होंने इंस्टीट्यूशनल में उन्होंने हमें दिल्ली के साथ में रखा गया है. और हमें यहाँ इन्फेक्टेड भी कराया गया है. इन्होंने इन्फेक्टेड भी कराया गया है. सुनिए ना, इन्फेक्टेड भी कराया गया और ऊपर से नंबर वायरल कराया, सब कुछ कराया. और हमने देखो जिस दिन जो फर्स्ट जो हमारे केस जो आप लोग सबको पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि फर्स्ट केस जो आया है वो किसके वजह से आया. हम जो ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं बताते हैं. ग्राउंड रियलिटी हमें पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से. बात क्या हुआ था, ये लोग तो 3 नंबर आए थे, वो कश्मीर से आए थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया. फिर हमारा एक जो स्टूडेंट आता है वो दिल्ली से आता है, उनको इनके साथ रखा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में. तो उसके पॉजिटिव आने की वजह से ये 3 भी पॉजिटिव आ गए. तो ये हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वाले जो भी जितने भी स्टाफ है उनको हम बोलते हैं कि ऐसा जो मैनेजमेंट है, फेलर ऑफ मैनेजमेंट है. ये सब कुछ फेलर ही होगा. यहाँ पे एक और केस है जो पॉजिटिव 18 पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव जो नेगेटिव बंदा है उसको भी हमारे साथ रखा गया है यहाँ पे. अब उनको बोल रहे हैं, जो उनको बोला कि अपने मर्जी से बैठा है. देखो वो अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते ना. उनको बोल रहा है कि वो अपने मर्जी से बैठा है. मर्जी से ये नहीं है कि उसको यहाँ 18 के साथ में रखे उसको इन्फेक्टेड कराए. वो तो अपने बच्चे के साथ बैठ रहा है ना. हमने मेडिकल स्टाफ से पूछा, उन्होंने बोला कि वो खुद बैठा है. खुद बैठेगा इसका मतलब ये नहीं कि उसको सजा दे कि यहाँ 18 के अंदर पॉजिटिव, उसका अलग रूम नहीं रह सकता है. ये टोटली फेल चल रहा है. जो भी हो रहा है सबको नाइंसाफी हो रहा है. अब खुद सोचिए ना सर, एक इन्फेक्टेड बंदा है, वो अपना लड़का है, वो अपने लड़के के साथ बैठे, कोई दिक्कत नहीं. अब इसका मतलब सजा नहीं है ना कि उसको पनिशमेंट दे रहा है 18 के बीच में रखे. एक सेपरेट रूम तो कम से दे सकते हैं ना. अब खुदा न खास्ता अगर उसको पॉजिटिव है निगेटिव तो कौन जिम्मेदार है ये सब कुछ जो भी हो रहा है सर फेलियर हो रहा है. हम जहाँ से देख रहे हैं, हम 14 से यहाँ पे आ रहे हैं. हमने इंस्टीट्यूशनल 15 दिन गुजारे हैं और यहाँ पे 12 दिन गुजारे हैं. सब कुछ जो भी हो रहा है नाइंसाफी हो रहा है. और अब हमने कितने
बार एक रिक्वेस्ट किए हैं, हमारे जो भी नाम जिसने वायरल किया है, हमारे घर वालों को पता नहीं था कि इतने डिफिकल्टी और घरों से फोन आ रहे हैं, हमें पता नहीं था कि कितना कैसे वायरल हुआ ये। सब कुछ ही फाइलर है यहाँ पे। मेडिकल अमले का एहतजाज अभी जारी है। सीएमओ करगिल अगरचे यहाँ पे आए हैं इनसे बात करने के लिए, लेकिन कहीं तक अभी किसी भी नतीजे तक नहीं पहुँचा है। अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुआ है। तो हमने सीएमओ से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सीएमओ ने मीडिया के सामने आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोविड-19 से लड़ रहे हैं, इनके मसाइल जल्द से जल्द हल हो, हम उम्मीद करते हैं। कैमरामैन मुजम्मिल मुस्तफ़ा के साथ सईद हाशिम रज़वी, लद्दाख टाइम्स।